Namaste and welcome to Truth Be Told, a unique series by OS.me where we bring to you stories of exceptional grit and gumption to inspire you and motivate you. I am Medha Shri, and today I have a phenomenal story of hope, passion, and life, of turning adversity into opportunity, and of changing lives through kindness. We have Achal Sharma with us, founder of Meals of Happiness, an NGO that serves warm, delicious, and healthy meals to the needy. She's built this organization with hard work and compassion. And this story is unlike anything that you've ever heard before. Achal served 2 million meals last year just during the pandemic. And just a few years ago, her own family of six would sleep on an empty stomach. So put your hands together for Achal Sharma. Hi, Achal. Welcome to Truth Be Told. Hello, Ameda. Thank you so much. Let's dive right into your story and inspire people. तो हम शुरू से शुरू करते हैं. Why don't you tell me how did this idea of feeding people come to you? When did it start? So, Meda, you remember when I was diagnosed with third stage of breast cancer in 2017, 15th of Jan, I remember the date also. So, after just diagnosed with cancer, I think after just 1 week, I was meeting my friends, and after coming back from there, one of the signal, my car stopped at one of the signal, and a few I think three kids came to me and they start knocking my door, and then they were asking for money, which I refused. And I don't believe in giving money because I always believe that motivate child trafficking and all that. So that's why I refused, and I asked them, कुछ खिला सकती हूँ क्या तुम्हें? तो जो बच्चे थे उनमें से एक बच्चा था, उसने बोला दीदी आप हमें एक रोटी खिला दो, दो रोटी खिला दो, वो भी चलेगा, वी डोंट नीड योर मनी। इस तरीके से वो बात हुई वहाँ पे। एंड मेधा, यू वॉन्ट बिलीव, when they're asking for me food now, I can feel that they are genuinely starving. And because of that, I stopped my car, and I bring them to one of the restaurant. So restaurant people they refused to give us food, and they were like, sorry, we don't have food, and it's 4 o'clock now. So I was like, okay. So I asked them, खाना तो नहीं है अब यहाँ पे, अब क्या करें? But they are local there, so they knew there is one nearby local market, and they actually you know say that दीदी वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे चलिए आप हमारे साथ. So it's on the walking distance, and I went with them, and there we were preparing 2 plates of chow mein, which end up 5 plates. And meanwhile, kids are very very demanding. लाल चटनी भी चाहिए, हरी चटनी भी चाहिए, मेरा भाई भी है, बहन भी है. And इस तरीके से, मतलब वो जो मोमेंट था ना, इंटायर मोमेंट ऑफ 20-25 minutes में था, you won't believe, I completely forget that I was diagnosed with cancer, or I have cancer. I completely forget, and I start enjoying that moment. And during that time, I immediately went back in my past, where we don't have anything to eat, and we are having food with just a spread of water and chili powder on top of chapati, and we used to eat that. And so from there, this idea came in my mind, and I feel so happy when the whole event is happening. And that day I thought, and I found a purpose in my life, like this is what I was looking for, and that's the start for Meals of Happiness. So we'll come to that, Achal. But first of all, I want to, I want people to know your story, because a lot of times people say, I don't have the resources, I don't have, मेरे contacts नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, resources नहीं है, तो मैं कैसे करूँ? So that is why I want to explore your story, because I want people to know that, उस दिन तो वो बच्चे आपसे खाना मांग रहे थे, कह रहे थे हमारे पास नहीं है, लेकिन उस दिन तक कई रातें ऐसी थी जब आपके पास खुद के पास आपकी फैमिली को खाना नहीं था, like you said, So let's talk about those days, Yes, that's another challenge in my life. And when I was just 15 plus, Meda, that time, my father is in very abusing nature, and he used to beat us a lot. And in fact, mama ke saath aisa hota tha, he used to abuse her and throw anything on her. And every morning when we are, एवरी मॉर्निंग घर में ऐसा होता था कि पता नहीं खाना आएगा नहीं आएगा, पापा का एक्ट कैसा होगा, बिकॉज व्हेन ही इज अपसेट ना, he'll make sure that nobody have food.
He'll spit in the food, and he start abusing, he throw food outside the room. So these kind of things are start happening a lot more often. And that's the reason, when I was in 8th class, me and my brother decide to quit the studies, and we start working when I was just 15 plus, and bhai was 17 plus. So we start working from there, and after couple of years, 4 years, I joined one of the real estate company. And it's not a company though. I start working with someone as a freelancer. So deal was, he will give my number and name and the project detail in the newspaper, and whatever call come, I'll close the deal and I'll get certain commission on top of that. So this was the deal, and I was lucky enough, in couple of months I'm able to make good money, which is 2.5 lakh rupees. So my first salary start from 4,000, and the first commission of real estate was 2.5 lakh rupees. So that was a lot of money. 2.5. Yes. I'm sure everybody was very excited. Yes, that's a lots of money. Also, Medha, I start, dreaming about future plans. Like, I will take out my family from 8 by 8 ka room to better place. I will give them the better future. Now we don't need to depend anymore on my father, and all that things start. I start thinking Plans about all बनने that. सब plans बनना बनने शुरू शुरू हो गए. किया, एग्जैक्टली. उसके बाद में क्या हुआ कि द ब्रोकर मिस्टर रघुवंशी, आई रिमेम्बर हिज नेम आल्सो, ही रिफ्यूज टू गिव दैट मनी. सो जो भी प्लान्स बनने शुरू हुए थे वो वहीं पे खत्म हो गए. यस. वाओ. सो इतने मुश्किल से आपने 2.5 लाख आपकी सैलरी इकट्ठी हो गई, पर जब देने का राइट. टाइम आया तो उन्होंने आपको रिफ्यूज कर दिया. Refuse कर दिया. He said, "What money you are talking about? Because we don't have any agreement in between. You know that Aanchal is our employee or any, and I don't have any agreement with him." So he completely refused. But the company is kind enough. I remember the project name also. I was working for the Bhaskar Group. Bhaskar Group one in Jaipur. So I was working for that particular product, and I used to go from Delhi to Gurgaon every morning, no matter it's raining or it's how hot is the weather. I used to stand outside from morning to evening to break or close some deals, and that's what they noticed. And I called one of the vice president of company, Mr. Dodi was his name, and I was like, Dodi sir, मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया. You have seen how hard I work to close these deals, and uh, that real estate broker is not giving my money now, and so what should I do? So he said, Achal, don't worry, I'll call him and I'll call you also at the same time, and let's talk in our office. Company actually convinced him to release some part of my brokerage, and not the entire 2.5 lakh, but some part of the brokerage, right? And after that, of course, I don't मैंने उनके साथ काम नहीं किया, and then company hired me as a freelancer with them. So I start Wow. working for them as a freelancer, and after some time I start my own company by the name of Sai Real Solution. मतलब zero से you started and then you made something, you made a company, but there were other hardships. Yes. So So क्या हुआ था? उसके बारे में आप मुझे बताओ. yes, Medha, after that, when me and my brother start this Sai Real Solution at that time in 2004, we both start this company, and we are closing good deals, and we are able to, move into the rental apartment because of that. But after 6 7 months only, my younger sister is, she was into a relationship with someone, and she wanted to get married to him, but हमारे में क्या होता है ना कि इंटरकास्ट मैरिज और ये सब नहीं होता है, एंड बिकॉज दे आर सिक, सो माई फैमिली रिफ्यूज. बट शी वॉज लाइक कि या तो शादी कराओ या फिर मैं सुसाइड कर लूँगी. सो अगेंस्ट माई फैमिलीज विल मैंने उसकी पूरी शादी की प्रिपरेशन करी. जो भी होता है पंजाबी मैरिजेस में, वो सारे उसी रिलीजन के हिसाब से हम लोगों ने, रिचुअल्स के हिसाब से शादी की. एंड उसके बाद फैमिली ने छोटी सिस्टर को बाइकआउट कर दिया कम्प्लीटली, दैट हमारा कोई लेना देना नहीं है. एंड आफ्टर 6 months only, he killed my sister and threw her at the Suraj Kund. And he tried to show that she was kidnapped, raped, and after that killed. They killed her and threw her body there, right? So this is something which is very very unexpected. कोई भी किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, because disown करना या जो भी इस तरीके के इमोशंस होते हैं, they are but natural in every family, I guess. But
ऐसी न्यूज़ आना हमारे लिए बहुत पेनफुल था. एंड द वर्स्ट पार्ट, ही वाज सिंस मॉर्निंग ही वाज विद अस. एंड हमारे साथ हॉस्पिटल भी जा रहा है, हमारे साथ पुलिस स्टेशन भी जा रहा है, सब कुछ करा रहा है. एंड नेक्स्ट डे व्हेन हमें उसकी बॉडी मिलती है सूरज कुंड में, तो पता चलता है कि उसी ने उसको गला दबा के वहाँ पे मार के फेंका था. सो दैट वाज वेरी सैड मोमेंट. एंड ये होता है हमारे साथ में, मतलब इस तरीके से जैसे उनको शायद एक प्रिविलेज मिल गया कि फैमिली ने डिसऑन कर दिया, तो शायद इसको अब कोई भी नहीं पूछेगा. एंड इट जस्ट नॉट ही किल्ड हर, he killed her child also because she was carrying 3 months baby. So Oh, yes, that was one of the biggest event happened in my life. And आफ्टर दैट आई फॉट फॉर हर. एंड somehow आई एम एबल टू मैनेज कि उसको हम लोगों ने अब, क्योंकि सारे विटनेसेस जो एविडेंस थे दे आर ऑल अगेंस्ट हर. वट एवर ही इज क्लेमिंग शी इज वेयरिंग, शी इज कैरिंग विद हर, everything recovered from his locker. And then he admitted also that there is some situation कि क्या क्या कुछ हुआ. So बहुत लंबी लड़ाई लड़ी मेधा इसके लिए. एंड because body सूरज कुंड में मिली थी, तो I used to go to Haryana for court. And I used to get lots of threat calls. And then we are finally get justice, and उसको life imprisonment की कराया हम लोगों ने. And today also we are fighting for the फांसी. acha. So the case is still on. Right. So Achal, I have a question here for you. You told me कि आपने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर अपनी बहन की शादी कराई. एंड फिर उसके बाद आपने जब पुलिस केस चला वो भी आपने अकेले लड़ा, बिकॉज फैमिली वाज नॉट अगेंस्ट इट. तो आप फैमिली से डील कर रहे थे, थ्रेट्स थे उससे डील कर रहे थे. एंड देन आई नो दैट यू आल्सो हैड दिस गिल्ट कि मेरी वजह से ये हुआ, क्योंकि अगर मैं सपोर्ट नहीं करती तो शायद वो जिंदा होती. ऐसे मुश्किल टाइम में फिर आपको वेयर डू गेट दिस स्ट्रेंथ कि मुझे करते ही रहना है, आई डोंट हैव टू गिव इन टू द गिल्ट, और दैट आई कैन नॉट लूज होप, मैं हार नहीं मान सकती. तो ऐसे टाइम में आपको कहाँ से स्ट्रेंथ मिलती है, या उस टाइम सुमेधा, नहीं? या so मेरा, मैंने आपको शायद पहले बताया नहीं, आई वाज अ विक्टिम ऑफ फिजिकल अब्यूज आल्सो इन माय फैमिली. एंड abused by nani side and mama side. And that's why I don't have a very good relation with my relatives. एंड जब बचपन से ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, और उस टाइम पे एक डर आ गया था मेरे अंदर. तो ऐसा हो गया था सिचुएशन कि मैं अपना रूम, जहाँ पे हम 6 लोग रहते थे, लाइट चली जाती थी तो सब लोग बाहर छत पे चले जाते थे सोने के लिए, और घर बाहर निकल जाते थे. मैं उस टाइम पे भी अपने आप को रूम में लॉक करके रखती थी कि मेरे साथ कोई कुछ गलत हरकत ना कर दे, राइट. तो मैं उस एनवायरनमेंट में बड़ी हुई हूँ कि जहाँ पे उस इंसिडेंट के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे यहाँ से निकलना है. एंड आई डोंट वांट टू बी अ विक्टिम. और मुझे वो फीलिंग लानी ही नहीं है ऑनेस्टली, क्योंकि जिन्होंने जो किया वो उनकी गलती है. उनकी गलती के लिए मैं क्यों अपने आप को ब्लेम करूं. एंड बिकॉज ऑफ दिस आई स्टार्ट मूविंग अहेड विद दिस थॉट कि मुझे कुछ अचीव करना है. एंड वेन एवर एनी इवेंट हैपन, सपोज मेरी सिस्टर का जैसे सबसे बड़ा इवेंट मेरे साथ में हुआ, उस टाइम पे ये था कि जो होगा देखा जाएगा वाला सीन, डू और डाई वाला मेरे साथ में सीन था. मुझे नहीं पता, बिकॉज I was not educated enough. I don't have financially support with me. And no family support. ऊपर से थ्रेड्स इतने ज़्यादा थे. So मैंने जो भी किया ना, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, बिना सोचे हुए किया. मुझे ये बस पता था कि मुझे उसके लिए लड़ना है, दैट्स ऑल. उस टाइम पे इतना सोच नहीं थी कि मुझे क्या करना है, क्या होगा. तो जस्ट आ गया अपने आप अंदर. आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन एक्चुअली, कि हम कभी कभी डर जाते हैं सोच कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा. उसकी बजाय अगर वी जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज एट हैंड, कि हमें इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है, करते रहे, तो इट्स फॉर द व्यूअर्स आल्सो सो मच टू लर्न फ्रॉम आचल's स्टोरी, कि जो सामने से करते जाओ, देखा जाएगा जो होगा. लीव एवरीथिंग टू गॉड एंड देन मूव अहेड. आई रिमेंबर दैट यू इवन बॉट अ हाउस फॉर योरसेल्फ with your family, and you were all celebrating, but then that was also taken away from you. इतना मेहनत से आपने, एक ही सपना था कि अपने घर में शिफ्ट होंगे, अपना घर बनाएंगे, वो बना, लेकिन वो भी चला गया. थोड़ा सा उसके बारे में would you want to share about that? यस. सो क्या हुआ था, उससे पहले एक और इवेंट हुआ था मेरा. उससे पहले आई वाज आफ्टर 6-7 months ओनली आई गॉट मैरिड टू अ हैंडीकैप गाय इन अ प्रेशर ऑफ सोसाइटी एंड रिलेटिव्स. एंड प्रेशर ये था फैमिली के ऊपर कि वट एवर रिसेंट पास वी हैव,
your daughter, younger daughter have, who will marry your elder one, you know, बड़ी के साथ. अब स्पेशली अपनी कास्ट में कौन शादी करेगा, और ये सब प्रेशर में लाके मेरी शादी मेरे मामा जी ने एक हैंडीकैप लड़के के साथ में करा दी जिसका एक पाँव नहीं था. बट मैंने शादी इसलिए की बिकॉज माई मॉम इज माई गॉड, यू नो, शी इज एवरीथिंग फॉर मी. आई कांट सी हर क्राई, एंड लूजिंग हर डॉटर इज, मतलब हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं शी इज़ अ मदर, व्हाट शी मस्ट बी गोइंग थ्रू, आई कैन फील दैट. तो वो सिचुएशन थी. मैंने कहा उन्होंने ऑलरेडी इतना बड़ा पेन अभी रिसेंटली देखा है, तो मैं उनको ये चीज़ें मैं नहीं उसमें डाल सकती ट्रबल में, बिकॉज ऑफ फैमिली की, सोसाइटी आके, फैमिली रिलेटिव आके उनको कुछ बोलें और उनको यू नो कर्ज करना शुरू कर दें, वो सब. इसीलिए मैंने हाँ की. बट मैंने हाँ की थी कि मुझे ऐसा लगा था जो हैंडीकैप होते हैं या स्पेशल लोग होते हैं, दे आर मोर ग्राउंडेड. लेकिन वहां पे भी कुछ ऑपोजिट हुआ. दे बीट मी टू द लेवल वेयर आई स्टार्ट ब्लीडिंग फ्रॉम हेयर एंड रात को 1 बजे फैमिली लेके आ रही है वहां से, बिकॉज जो हमारे मीडिएटर थे उन्होंने कॉल किया फैमिली को. एंड यू वॉन्ट बिलीव, आई वॉज वेटिंग फॉर माई मदर पुलिस को फोन करने के लिए कि मम्मा बोलेंगी तभी कॉल करूंगी मैं, वरना फिर मम्मा बोलेंगी कि लोग रिश्तेदार बोलेंगे तुमने पुलिस बुला ली बिना पूछे हुए. तो वो एक, या So this is after your sister had been murdered. यस. तो आपने उसके लिए इतनी लड़ाई करी, उसके लिए आपने पुलिस से भिड़े अकेले, थ्रेट्स ये सब ली, लेकिन जब खुद की वो डोमेस्टिक वायलेंस हो रही थी और आपके जो एक्स हस्बैंड थे वो आपको सिर्फ इनसिक्योरिटी की वजह से, बिकॉज वी डिस्कस दिस आई नो, इनसिक्योरिटी की वजह से आपको, ही वाज बीटिंग यू अप सो मच कि आप बेहोश हो जाते थे, खून निकल रहा है. He was not beating me. My ex-father-in-law was beating me, and he was not doing anything. ओके. तो लेकिन फिर तब तक आपने वेट की कि जब मम्मी बोलेंगी तभी मैं अपनी रिपोर्ट पुलिस में करूंगी. अपने लिए जब आपको लड़ने का आया तो आपने सोचा कि मैं झेल सकती हूँ, ये मैं झेल लेती हूँ, मम्मी को ना दुख हो. बिकॉज हमारे में क्या होता है ना मेधा, हमारे में ये होता है कि फ्रॉम वेयर आई कम ना, जैसे लेके गए घर वापस, तो मैंने मम्मी को इमीडिएटली बोला दैट मेरे को आगे कंटिन्यू करना नहीं है, क्योंकि अभी 1 महीने में अगर ये सब हो रहा है तो आगे क्या होगा मेरे साथ में. एंड आई डोंट वांट टू बी लिव माय लाइफ लाइक यू, लाइक पापा इज टॉर्चरिंग यू, एंड आई डोंट वांट टू बी माय यंगर सिस्टर, सो दैट यू नो कि मुझे ना तो मेरी छोटी सिस्टर की तरह मरना है ना आपकी तरह लाइफ जीनी है कि कॉम्प्रोमाइज करके. जब मैं आपका ख्याल रख सकती हूँ, पूरी फैमिली का ख्याल रख सकती हूँ, तो मैं अपना भी ख्याल रख सकती हूँ. और मेरी ये कॉन्वर्सेशन हो रही थी तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि बेटा हमारी शादी में, यहाँ पे नई नई शादियों में 1-2 साल मार पिटाई चलती है, एंड दे आर नॉट अग्री टू कीप मी विद देम जस्ट बिकॉज कि सोसाइटी क्या बोलेगी, छोटी सिस्टर के साथ ये हो गया, बड़ी के साथ अभी वापस से ये सब हो रहा है. सो दैट टाइम आई डिसाइड मेधा, I don't want to be live my like my mother, and I don't want to die like my sister. And again, against my family, I filed a divorce. And in 2007 July, I got married, and 2008 I was again a free woman. So I took a stand for me, but little late. But also you had to first discuss it with your mom. पहले आपको लगा कि मैं पहले मम्मी को डिस्कस करूंगी, समझाऊंगी, तभी आगे बढ़ूंगी. ओके. एक और फिर आपने जंग फतेह कर ली. And then you were again strong, and you know you had your life, and you thought कि अब तो मैं अपनी जिंदगी बना के ही रहूंगी. And then cancer happened. No, before that house got demolished. Oh God. आंचल कितना तुमने झेला है. You know, to be honest with you, कोई और होता है, छोटी सी प्रॉब्लम होती है ना, आंसू बहा के लोग टब भर देते हैं कि why me, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे को क्यों हुआ. And look at you, you're talking about all these hardships, and you've won over all that, and you have such a beautiful smile. And a calmness, frustration भी नहीं है फेस पे ना. कई लोग हो जाता है कि when you talk about your past or your problems, तो लोगों के मुंह पे आ जाती है frustration. But look at you, you're so peaceful, you're so calm, and you're so happy. Because so God has something beautiful for me. Still, I believe that God has something beautiful for me. Wow, this faith in God that you have, we're going to talk about that. But you were talking about the house that got demolished. Yes. So after some time, again we are back to the normal life, Medha. And I bought a piece of land of 100 square yard for my family in Chhatapur. And I don't know that it's you know, we can't build there after certain stories. So मैंने क्या किया कि काम अच्छा हो रहा था रियल एस्टेट में. दैट टाइम इट वाज अ बूम, एंड आई वाज अर्निंग प्रीटी गुड अमाउंट, मतलब अच्छा खास पैसा कमा रही थी. मैंने वो घर खरीदा, एंड मैंने सीधा ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी बना दिया वहाँ पे. सो यू मस्ट बी रिमेम्बर
11 और 12 के बीच में डिमोलिशन हुआ था दिल्ली के अंदर, जिसमें हमारा भी घर आया था. एंड द वर्स्ट पार्ट इज हाउस गॉट डिमोलिश एट द स्टेज ऑफ फिनिशिंग, वेयर एवरीथिंग इज इन्वेस्टेड. पूरा सेविंग्स लगा दी, लोगों से लोन लेके लगा दिया पैसा. एट दैट मोमेंट हाउस गॉट डिमोलिश एंड आई रिमेंबर आई वाज क्राइंग आउटसाइड माय हाउस, स्टैंडिंग एंड रिक्वेस्टिंग एवरीवन कि प्लीज मत करो, क्या है प्लीज आप हमें बताओ, हमें तो पता भी नहीं है क्या हुआ एग्जैक्टली. सो बट दैट डे I have one more habit, Megha. I talk to myself a lot. So when my house was getting demolished, I was talking to myself, Aanchal, ghar hi hai. Thanks to God that you are still alive. You know, still you can Wow. make another house for yourself. So Aanchal, you told your mother was like, हमारे पास पूरा का पूरा घर होता, अब हम फ्लोर पे रह रहे हैं, बट यू सेड नो, वी स्टिल हैव हाउस. लोगों के पास घर भी नहीं होता, कम से कम हमारे पास अपना है. तो यू आर द परफेक्ट एग्जांपल, जिसको कहते हैं कि ग्लास आपका हमेशा आधा भरा ही होता है. कितने लोग होते हैं जो सोचते हैं एक घूंट कम हो गया तो उनका नजर रहता है इतना खाली है. आपका ग्लास हमेशा भरा है. दिस इज वन ऑफ द लेसन्स दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम यू. और जितनी बार मैं आपकी स्टोरी सुनती हूँ, आपसे बात करती हूँ, दिस इज व्हाट आई हैव ऑलवेज नोटिस. So moving forward, there was this, you were always thankful कि चलो मेरे पास, I have myself, मेरे पास मेरी health है, मैं जिंदा हूँ, मैं दोबारा सब हासिल कर लूंगी और जो सपने सब पूरे कर लूंगी. फिर पता चला कैंसर हो गया. तो फिर कैसा लगा आपको अचानक जब एक तो डायग्नोस कैसे हुआ, किस कंडीशन में, दूसरा जब पता चला तो आपको what was your reaction to it? So this is not that only, actually before just that I'll not take much time. Meda, before that my father was diagnosed with TB. Father recovered from the TB, mother diagnosed with the cabbage worm, her right hand got paralyzed. The moment she recovered, I was diagnosed with cancer. So that was the series what happened with us. Yes. And 2017, I remember I was celebrating my birthday just 2 days before, and after 2 days I was diagnosed with third stage of cancer. And actually मैंने बहुत पहले एक lump notice किया था year before in my breast, right breast, which is the size of peanut. बट मुझे ये नहीं पता था कि ये कैंसर होगा. एंड वट एवर हार्डशिप आई हैव फेस्ड इन माई पास्ट, आई वॉज निग्लेक्टिंग माई बॉडी एंड माई हेल्थ, विच इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक आई हैव डन, राइट. सो एक साल पहले जब वो नोटिस किया तो किसी ने मुझे बोला कि आंचल आप होम्योपैथी में अपने आप को ट्राई करो, बिकॉज कैंसर तो नहीं बट कुछ हो सकता है. सो आई रिमेंबर कि मैंने अपना ट्रीटमेंट वन ऑफ द होम्योपैथी बेस्ट डॉक्टर के साथ शुरू किया था. एंड दैट एक्सपीरियंस वॉज वर्स्ट, बिकॉज मैं उनको बोल रही थी सर कोई टेस्ट करा ले हम एंड देन कैन वी गो फर्दर. तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, आप यू आर जस्ट 32 एंड आपको कैंसर नहीं हो सकता, और आप ये सिर्फ फाइब्रॉइड है. एंड एवरी 3-4 months आई कीप आस्किंग हिम सर कुछ करा ले, बिकॉज एवरी 3-4 months में ना मेरी बॉडी में चेंजेस हो रहे थे. सो फर्स्ट लंप स्टार्ट ग्रोइंग बिगर, एंड ये वाले हाथ पे राइट साइड पे मेरा, मैं लॉन टेनिस खेलती थी तो उस पर गिव अप करना पड़ गया. आई एम टू मच इनटू जिमिंग, सो जिमिंग का मेरा जो था, मैं वेट्स प्रॉपर नहीं लिफ्ट कर पा रही हूँ. वो सारे चैलेंजेस लाइफ में आने लगे थे. एंड देन उसके बाद बैक पेन शुरू हो गया, लथार्जिकनेस शुरू हो गई बहुत ज़्यादा. माई मोशन टर्न कम्प्लीटली ब्लैक, माई ब्रेस्ट श्रिंक टूवर्ड्स इनसाइड एंड इट्स बिग स्वेल, और ऊपर से श्रिंक हो गया टूवर्ड्स इनसाइड. इट लीव्स अ ह्यूज होल and I was scared at that time. And after exact 1 year, Meda, I asked doctor, I'm 200% sure, because I have read one of the article on Facebook which clearly says whatever symptoms I have, it is a symptoms of extreme cancer. So I went to the doctor. I asked doctor, can I tell you something, sir, कि मैंने ये सब पढ़ा है और ये सब कैंसर की तरफ लीड कर रहा है. Are you still sure this is not a cancer? Then he said कि आंचल अब आप चेक करा लो, आप फॉलो अप्स करा लो. So this was my biggest mistake, that I could have diagnosed at the early stage, but because of homeopathy it lead to be third stage. एक फ्रेंड है, उनके साथ मैंने डिस्कस किया एक्चुअली. तो हम लोग जिम बडी थे एंड मैं जिम से उतर रही थी और उसकी कंपनी में एक दिन पहले ही कोई लॉस हुआ था. तो उसने मेरे को देखा, क्योंकि मैं हमेशा स्माइल के साथ रहती हूँ, तो उसने कहा आंचल क्या हुआ, मैंने इतना बड़ा प्रॉब्लम अपना बताया लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया. सो आई डिस्कस विद हिम, ही वाज द फर्स्ट पर्सन कि ऋषि मेरे साथ ना यार मुझे पता नहीं ऐसे ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, और लम्प था एक जो अभी इस साइज का हो गया है, फ्रॉम एज टू रीच टू द मिडल ऑफ द ब्रेस्ट. तो उसने इमीडिएटली, ही वाज अबाउट टू फ्लाई जर्मनी. मेदा, यू वॉन्ट बिलीव, ही कैंसल हिज फ्लाइट
and booked my appointment with one of the mammography doctor and came there. और वहाँ पे पता चला that I was actually having a cancer. और मुझे याद है कि जब डॉक्टर ने मुझे बोला ना तो मैं बिल्कुल नम हो गई थी, ऑफ कोर्स जस्ट लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग। मैं इतना नम हो गई थी कि डॉक्टर ने थोड़ी देर के बाद मेरा शोल्डर शेक किया और उन्होंने बोला कि आंचल, आर यू लिसनिंग व्हाट आई एम सेइंग? एंड ही वाज शाउटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू कैन इग्नोर सच अ बिग लंप इन योर ब्रेस्ट, वो भी दिल्ली में होके। तो मैंने उनको बोला, मैंने बड़ी नम आवाज में मैंने उनको बोला, मैं कहा सर कैन यू प्लीज रिपीट, आई कुडंट हियर एनीथिंग आफ्टर कैंसर। तो वो मेरा रिएक्शन था फर्स्ट। एंड लोगों के माइंड में आता है मेरे बच्चों का क्या होगा, कैसे वो देखेंगे। मेरे माइंड में फर्स्ट थॉट था कि मेरी फैमिली का क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया था। तो दैट वाज द फर्स्ट रिएक्शन व्हेन आई गॉट टू नो। एंड उस टाइम पे लेकिन एक और चीज़ थी, डॉक्टर हैं जिन्होंने मुझे बोला कि उन्हीं डॉक्टर ने कि बेटा इट्स अपॉन यू, if you give 1 year to yourself or give a chance at least, maybe you win or you lose, but there is no harm to give a chance. That day I decide, उस दिन मैं बहुत रोई थी। उसके बाद मैंने बोला कि आंचल बस, you don't need to worry about it. I used to wear my best makeup. I start all my test actually, biopsy से लेके सारे all alone, बिकॉज मैं अपने घर में नहीं बता सकती थी। भाई की शादी थी उसी ड्यूरिंग दैट पीरियड, ओनली 22 की भाई की शादी थी और मुझे उन इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करना था विदाउट टेलिंग एनी वन। एंड इट्स रियली वेरी हार्ड, बट ठीक है, हो गया मैनेज। उसके बाद 22 की भाई की शादी हुई है, 23 को मैं हॉस्पिटल गई हूँ मेरा, एंड सारी रिपोर्ट्स कलेक्ट की। डॉक्टर को बोला कि व्हाट नेक्स्ट नाउ, तो डॉक्टर ने बोला आंचल देयर इज टू वे, हमें कीमो शुरू करना है इमीडिएटली। वन वी कैन गिव यू कीमो थ्रू कैनुला एंड वन वी कैन इंस्टॉल अ कीमो पॉट अंडर योर कॉलर बोन। सो आई आस्क व्हाट इज द डिफरेंस इन बोथ ऑफ दैट। तो उन्होंने बोला कि आंचल जो कैनुला लगाते हैं उसके बहुत सारे ड्रॉबैक है, बिकॉज कई बार क्या होता है एक कीमो दो कीमो के बाद नर्व्स मिलनी बंद हो जाती है, देन दे पेंचर यू फ्रॉम अदर एंड। वहाँ से भी अगर स्वेलिंग नहीं जाती है तो फिर लेग से भी पेंचर करना पड़ता है। तो इस तरीके से कीमोज दी जाती है। तो मैंने उनको बोला सर जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि मैं घर पे नहीं बैठ सकती हूँ, मेरे पास फंड्स नहीं है अपना ट्रीटमेंट अफोर्ड करने के, तो मुझे जो करना पड़ेगा मुझे काम भी करते रहना पड़ेगा साथ के साथ। एंड फिर उन्होंने बोला ठीक है फिर आप आंचल आप कीमोपॉट लगाओ क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो मैंने बोला क्या प्रोटोकॉल है? ही सेड कि 6 घंटे की फास्टिंग चाहिए। मैं कहा सर इट्स बीन मोर देन 6 आवर, मैं सुबह से एक रिपोर्ट राइट विंग से ले रही हूँ, एक लेफ्ट विंग से ले रही हूँ, एक मेट्रो विंग से स्मार्ट विंग से ले रही हूँ, तो कैन वी डू सर्जरी राइट अवे? और उस टाइम पे मेरे पास कोई नहीं था, मेरा फ्रेंड था साथ में, बस उसको भी निकलना था। सो उसी टाइम पे हमने सर्जरी परफॉर्म कराई, 1.5-2 घंटे की सर्जरी थी। एंड नेक्स्ट डे मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, तो मैंने डॉक्टर को बोला जब वो कीमोपॉट इंस्टॉल कर रहे थे कि 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया था, जो एनेस्थीसिया मुझे दिया गया था ना उसका इफेक्ट कम होने लगा था। तो आई कुड फील दैट पेन क्योंकि वो कुछ इशू हो गया था, दे आर नॉट एबल टू इंसर्ट प्रॉपरली, तो वो बार बार फिंगर से ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो फिर वो बीच में अपने डॉक्टर को बुलाने गए सीनियर को, तो वो इतना हो गया तो मैं पेन में थी। मैंने कहा सर आपका अपनी वाइफ से झगड़ा हुआ है क्या? तो ही सेड हाउ डज मैटर टू यू, कि आपका क्या लेना देना? मैंने कहा नहीं इट्स पेनिंग एक्चुअली, एंड कल मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, आई डोंट वांट टू स्टे इन हॉस्पिटल। तो वो हंसने लगा, कहता पागल लड़की, यू आर इन अ हॉस्पिटल एंड डूइंग अ कैंसर ट्रीटमेंट राइट, तूने बर्थडे अटेंड करना है। मैंने कहा सर यस मैं बर्थडे नहीं अवॉइड कर सकती। मेरी सर्जरी हुई, उन्होंने मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा फॉर कपल ऑफ आवर्स एंड देन उन्होंने मुझे वहाँ से रिलीज करा। मैं खुद गाड़ी चला के घर गई और उस दिन मैंने घर पे बताया विद द ड्रेसिंग ऑफ पूरा का पूरा, यहाँ पे दे इंस्टॉल पाइप डाला था यहाँ से यहाँ तक एंड दिस इज द कीमोपॉट अंडर। तो जब घर पे गई तो उन्होंने बोला कि ये क्या है? मैं कहा आई वाज डायग्नोज विद कैंसर। उस दिन मैंने घर पे बताया और जो शादी का माहौल था ना वो सब रोने में और ऐसा हो गया जैसे पता नहीं कोई डेथ हो गई है घर में। बट मेरा ट्रस्ट भी पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर करेजेस आती है। आई हैव अ हैबिट टू एक्सेप्ट माई सिचुएशन, जो भी होता है ना आई एडजस्ट। मेरे को ये लगता है कि ये जो अभी मेरे पास है ये मेरा बेस्ट है, आगे का जो चला गया वो दैट डजंट बिलोंग्स टू मी। मैंने पेरेंट्स को जब उन्होंने रोना वोना शुरू करा, भाई ने रोना शुरू कर दिया, तो मैंने उनको एक ही चीज़ बोली, अगर आप लोग ऐसे रिएक्ट करोगे ना तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, बिकॉज मुझे लगता है मैं सर्वाइव करूंगी एंड दिस इज नॉट एंड ऑफ माई लाइफ। बट आप लोग ऑलरेडी बिलीव कर चुके कि ये तो मर जाएगी, इसको कैंसर हो चुका है। तो वहां से टचवुड उसके बाद फैमिली ने भी नहीं पूछा कि इसको क्या हुआ, फिर तो वो भी भूल गए।
वहाँ से देन आई यूज टू गो टू हॉस्पिटल ऑल अलोन एंड मैं अपना बेस्ट मेकअप पहनती, बेस्ट ड्रेसेस पहनती, रिप्ड डेनिम्स पहनती और हॉस्पिटल में जाके फिर वहाँ पे हंगामा करना शुरू करती। और मेरे जो डॉक्टर है मिस डॉक्टर हरित, ही यूज्ड टू कॉल मी चुड़ैल, कि अब ये चुड़ैल आ गई है, अब ये सबको परेशान करेगी यहाँ पे। दिस इज हाउ, आई डोंट नो कहाँ से आई। मैं पहले जिम जाती थी, जो भी लाइट एक्सरसाइज कर पाती वो करती, फ्रेंड्स लोगों के साथ जोक्स क्रैक करती, फिर हॉस्पिटल जाके 8-9 घंटे की अपनी कीमो कराती, फिर ड्राइव करके अकेले वापस घर जाती। तो ये सारा चीज़ें मुझे शायद पता ही नहीं चला, बिकॉज मील्स ऑफ हैप्पीनेस शुरू हो चुका था पहले, एंड आई फाउंड ऑल माई हैप्पीनेस देयर। तो मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, ये एक डिजीज़ है जो रिकवर हो जाएगी, थोड़े टाइम की बात है बस। तो यस, मील्स ऑफ हैप्पीनेस एक्चुअली बिकम अ रीजन टू डील कैंसर। उससे मुझे इतनी दुआएं Wow. लोगों की, इतना प्यार, छोटे छोटे बच्चे मेरे लिए दुआ करते थे, दीदी हम आपके लिए दुआ करते हैं, आपको कुछ नहीं होगा। तो आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ मील्स ऑफ हैप्पीनेस। राइट आंचल। सो इसी के दौरान आपने अपना मील्स ऑफ हैप्पीनेस शुरू कर दिया। यस, तो जब आप अपना ट्रीटमेंट करा, कीमो पॉट लगने से पहले ही आपने इज व्हेन यू मेट दोस 2 or 3 किड्स जिनको हाँ आपने जी, सोचा कि मैं इनको खाना खिलाती हूँ, फिर वो आपके रोज फ्रेंड बन गए। यस। देन हाउ डिड इट स्टार्ट? उसके बाद बट हाउ डिड यू थिंक कि मुझे मील्स ऑफ हैप्पीनेस एक एनजीओ स्टार्ट करनी है, इतना बड़ा लेवल पे करना है? नहीं, वो उस टाइम पे स्टार्ट करते वक्त ये लेवल नहीं सोचा था, इवन एनजीओ भी नहीं सोचा था। आई जस्ट स्टार्टेड बिकॉज मुझे इतनी खुशी होने लगी थी। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने मुझे मेधा छोड़ दिया था व्हेन दे गॉट टू नो दैट शी डायग्नोज विद कैंसर, शी माइट आस्क फॉर मनी और इसको पैसे की हेल्प पड़ेगी अब। सो लॉट्स ऑफ माई फ्रेंड एक्चुअली मेंटेन अ गुड डिस्टेंस फ्रॉम मी, एंड बिकॉज ऑफ दैट I start spending more time with those kids, old age home and outside AIIMS hospital। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इतनी खुशी मिलती है और मुझे ऐसा फील होता था कि सब कुछ नॉर्मल है मेरे पास। सो वी स्टार्ट विथ 5 रोल्स। घर को मम्मी को जब जाके डिस्कस किया, मम्मी ने कहा ठीक है, तुम्हें खुशी मिलती है तो हम 5 रोटियां 10 लोगों की रोज बना देंगे एंड वो तुम देना शुरू करो। तो हम लोग रोल बनाते थे आलू के और दूसरी सब्जियों के, और वो जहाँ पे टाइम मिलता था, जिसको जो रोड पे मिलता था उसको देना शुरू करते थे। 5, 10, 15, 50, 60 का वो 200 तक पहुंचे, पता नहीं चला। एंड शायद उस टाइम पे मुझे सिंपैथी भी मिल रही थी। जो मेरे जिम बडीज थे कुछ लोग, वो लोग अपना मतलब, आई रिक्वेस्ट देम, व्हाई डोंट यू सेलिब्रेट योर बर्थडेज, योर स्पेशल डेज इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्सरिंग फूड फॉर द अंडर प्रिविलेज। दे स्टार्ट कमिंग फॉरवर्ड एंड ठीक है, सिंपैथी मिल रही थी या जो भी मिल रहा था, बट आई एम गेटिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ हैप्पीनेस फ्रॉम दैट एक्टिविटी। तो मेरा ये था कि अच्छा, मुझे अब इतनी खुशी मिल रही है, मैं और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी। वेयर डॉक्टर आस्क ऑल द कैंसर पेशेंट टू डो नॉट गो टू द क्राउडेड एरिया, बिकॉज इम्यून इतना वीक हो जाता है दैट वी आर मोर प्रॉन टू गेट एनी इन्फेक्शन फास्टर देन एनी अदर ह्यूमन बींग। एंड मेरा उल्टा था, आई यूज टू स्पेंड माई डे इन स्लम्स, ऑन स्ट्रीट विद द किड्स, इन ओल्ड एज होम एंड आउटसाइड एम्स हॉस्पिटल। इनफैक्ट मेरी जब मेन सर्जरी हुई थी मेरा, उस टाइम पे आई हैड अ ड्रेन, मेरा यहाँ पे ड्रेन बॉटल लगा हुआ था इतना बड़ा, और एक ड्रेन बॉटल यहाँ पे लगा हुआ था, मेरे पास वो इमेजेस भी हैं कुछ। उस टाइम पे सर्जरी के जस्ट वीक आफ्टर मैंने 600 लोगों का खाना बनवाया अपनी फैमिली के साथ में। ड्रेन बॉटल्स लटकी हुई हैं और मैं एम्स हॉस्पिटल के बाहर, हमारी पूरी इको गाड़ी से भरी हुई, वो खाने से भरी हुई है, और हम लोग खाना बांट रहे हैं। और आई रिमेम्बर मेरा भाई बोल रहा है प्लीज कुछ तो वो कर ले बहन, तू बीमार है। मैंने कहा नहीं यार, वो मुझे मजा आ रहा है। तो ये सब एक्चुअली यहाँ से मील्स ऑफ हैप्पीनेस रीच करते 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 इस लेवल पे पहुंचा, एंड विदाउट एनी Right. इंटेंशन। Without any intention, it was just, and and you say that gratitude is a big part of your life, कि चलो I'm thankful कि कम से कम मेरे पास 1 साल तो है जिंदगी का, या आज का दिन तो है। एंड यस, इसी तरह से यू मेड यू वर्क वेरी हार्ड कि जो है मेरे पास आज का दिन है, आई विल लिव इट अप, आई विल वर्क हार्ड टुडे एंड विल सी व्हाट हैपेंस टुमारो। इनफैक्ट लास्ट ईयर इन जून, आई थिंक, राइट, जो पैंडेमिक हुआ था, तब आपने कम से कम 1.5 करोड़ रुपया आपने रेज किया लोगों को खाना खिलाने के लिए और सब कुछ करने के लिए। लोग जुड़ते चले गए। टेल मी यस। लिटिल अबाउट दैट, हाउ डिड दैट हैपन? सो मेरा, हम लोगों ने पहले हम लोग सिर्फ 200 लोगों को डेली खाना खिला रहे थे, एंड वी आर रनिंग वन स्मॉल कैंपेन टू बिल्ड अप आवर किचन, बिकॉज टिल नाउ वी डोंट हैव किचन, बिकॉज जो भी हमने फंड्स रेज किए थे वो अभी भी हम लोग वी आर फीडिंग डेली बेसिस पे 1000 पीपल। सो व्हाट हैपेंड, जब ये पैंडेमिक आया, हम लोगों ने करीब करीब 20 लाख रुपीस रेज किया था अपने किचन के लिए, एंड हमें नहीं पता था कि ऐसी कोई सिचुएशन आएगी।
तो जब ये हुआ हमने वो फंड विड्रॉ करके खाना डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। एंड एक दो स्लम्स थे जहाँ से हमें कॉल आना शुरू हुआ। एंड वहाँ पे पता चला कि बच्चों ने काफ़ी टाइम से कुछ नहीं खाया, किसी ने 3 दिन से नहीं खाया, किसी ने 2 दिन से नहीं खाया। एंड काफ़ी बच्चे सर पकड़ के कोई बैठा हुआ है, बिकॉज एक बारी को हम लोग भूख को डील कर सकते हैं पर बच्चे के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो वहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले हेल्प पहुंचाई। और देयर फैमिली ऑफ आई एम टॉकिंग अबाउट 40 फैमिलीज वाज देयर इन रंगपुरी पहाड़ी। उनको पहले राशन दिया गया सारा। और उस टाइम पे वहीं पे हमने डिसाइड किया कि वट एवर fund we have, whatever we raised till now, we will use for the COVID. And from I think since that day only we start डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड। फर्स्ट हम लोगों ने 2000 किया, फिर हम लोगों ने 5000 के पास ले गए। एंड देन विद इन 2 or 3 days वी स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग 10,000 मील्स एवरी डे। एवरी डे वी आर फीडिंग 10,000 पीपल। एंड जब वो 20 लाख रुपीस कंज्यूम होने ही वाला था, वी आर लकी। इसको कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह वाला जो डायलॉग है ना, वो यहाँ पे फिट होता है। जब लोग हमें बोल रहे थे कि आंचल यू आर प्रॉन टू इन्फेक्शन, स्टिल यू आर नॉट फुल्ली रिकवर, तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है या जो भी है, प्लीज यू डोंट गो इन द ग्राउंड एंड डोंट बी सुपर वुमेन। उस टाइम पे पता है क्या थॉट आया था मेरा? इट्स वर्थ टेकिंग रिस्क इफ आई डाई ऑल्सो बाय हेल्पिंग अदर्स, तो मैं बस फैमिली के साथ में और सबके साथ में हम लोग निकल गए। और उसी टाइम पे हमें कॉल आया जब हमारे फंड्स खत्म होने वाले थे मिलाप से, दैट आंचल वी आर वॉचिंग योर वर्क एंड यू आर डूइंग रियली गुड वर्क विद योर टीम, कैन वी प्लीज डू फंड रेजिंग? मैंने कहा यस, आप अगर हेल्प कर सकते हैं। सो वी गिव देम अ फिगर ऑफ 10 लाख रुपीज, बिकॉज हमें पता नहीं था कि हम इतना बड़ा कुछ कर जाएंगे। एंड उन्होंने कैंपेन रन किया। दे स्टार्ट कैंपेन एट 12 o'clock एंड एज पर आर इंफॉर्मेशन कैंपेन जो था वो 10 लाख का था। बट couple of hours when we open a campaign we cross 1 crore. Wow. In couple of hours, very first day only we crossed that. And I call crowdfunding people कि ये क्या हुआ, हमने तो हम गलत गिन रहे हैं या आपने कुछ किया है? तो कहते नहीं मैम, आपका कैंपेन एंड पीपल आर लविंग योर वर्क एंड दे सपोर्ट इट एंड वी आर इंक्रीजिंग मोर। So they increased from there to 1.5. We raised 1.5 in just 2 to 3 days. हम लोगों ने जो फंड रेज किया था ना मेरा, हम लोगों ने खुले हाथों से काम किया। हमने ये नहीं सोचा कि हम अपने लिए कुछ ज़्यादा बचा के रखें, हम कैसे सर्वाइव करेंगे। बट येस, लोगों का सपोर्ट आता गया। एंड इट जस्ट नॉट दैट वी आर नॉट स्टॉप्ड हियर, वी गेट लॉट्स ऑफ सपोर्ट फ्रॉम लोकल पीपल, फ्रॉम RWA, फ्रॉम Delhi police. One of the society donated ration kit for 1 month for 500 families. Agarwal Sweet come forward to help us with tons of sweets. They are making every night and sending us next day for 2 days, and we are distributing in middle of night because sweet ऐसा होता है ना कि किसी को instant energy देने के लिए, तो उनका ये था कि हम मीठा देंगे। Then there's one uncle from another society, he donated us thousands of water bottles. So Wow. it's just not me or my team. I think it's a mutual effort of society. Everyone shows us कि हम उनके साथ काम कर सकते हैं। वो प्यार See, जो your मिला। intention, आपकी intention थी, आप hard work कर रहे थे. I was very honest, truthful, and kindness. Yes. Because of those two things, the universe came together to help you. And besides that, you have now started your organization called Can Heal, right? Can Heal, yes. Tell me about that now. So Can Heal is all about supporting cancer community in India. Still we are lacking of lots of resourcing for cancer community. एंड ये शुरू हुआ इस प्रोजेक्ट पे मेरा, मैं पिछले 3-3.5 साल से काम ही कर रही थी, बिकॉज आई विटनेस लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस बाय माई सेल्फ, वेयर दूसरे पेशेंट बैठे हुए हैं और उनके पास कुछ एक्सपेंसिव गैजेट्स हैं जिससे हेयर फॉल ना हो, और दूसरे कंफर्ट जैसे हीटेड ब्लैंकेट है या कुछ स्पेशल क्लोथ्स हैं। तो ये सारी चीज़ें होती थी और मैं ऐसे देखती थी ये क्या चीज़ है, आई विश कि मैं भी ये अफोर्ड कर पाऊँ। एंड वाई पीपल आर सिटिंग सैड ओनली देयर। और उसके बाद ये था कि जो मुझे मिलने आते थे वो लोग कोई फ्रूट लेके आ रहा है, कोई प्रोटीन का बॉक्स लेके आ रहा है, बिकॉज आई वॉज इन टू अ जिमिंग एंड ऑल दैट, but I'm not allowed to have protein and use flowers and all these things, right, because of my treatment restriction.
तो उस टाइम पे ये आइडिया आया कि हम लोग क्यों एक पेशेंट जो ऑलरेडी एक ट्रॉमा से निकल रहा है, हम उसके पास जब जाते हैं तो एक सिंपैथी के साथ क्यों जाते हैं, हम उसके पास जाते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें क्यों लेके जाते हैं जो सम टाइम इनडायरेक्टली उस बंदे को इमोशनली वीक कर देता है। तो मैंने कहा क्यों ना हम इसके साथ में कुछ ऐसा करें कि हम जब जाएं तो हम उनके साथ में होप लेके जाएं, उनको रीजन दे लाइफ जीने का, उनको बताएं कि कैंसर इज जस्ट वन पार्ट ऑफ योर लाइफ, राइट? So after discovering all things, because we are not allowed to use anything which have a chemical, any product. तो since I don't have a financially support, तो मुझे भी, मैंने भी अपने आप को स्विच करके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स पे डाल दिया था. इवन मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, दे यूज टू कॉस्ट मी बॉम्ब 5,000 रुपीज, 6,000 रुपीज, इस तरीके के. So there also I start researching and we develop few skincare product which is zero chemical, and come up with special clothes for cancer patient which they can wear during the treatment, you know, stylish gown, so cancer will be not bore anymore. अभी You लोग जो है वो don't, हाँ, हाँ, मतलब one so does not have to look like a patient. कोई ऐसे बिल्कुल बीमार Exactly. लगने की They जरूरत need नहीं है. to look like. Yeah, because you know what, sometimes वेदा क्या होता है कि आपकी अपीयरेंस आपको वीक कर देती है, बिकॉज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यू आर नॉट वेयरिंग समथिंग विच इज गिव यू कॉन्फिडेंस. तो मैंने कुछ ऐसे क्लोथ्स डिजाइन करे जिनमें किसी को पता ही नहीं चलेगा दैट दिस इज अ स्पेशल कस्टमाइज फॉर द कीमोज एंड ऑल, एंड दे कैन जस्ट ओपन इट फ्रॉम हेयर एंड टेक देयर कीमोज, एंड इफ समवन हैव अ लोअर abdominal issue, they can still open that part and treatment can be given from there. And also we are coming up with the natural organic cotton clothes which we are strictly allowed advised during the radiation. So radiation is a very difficult part because आपकी पूरी skin burn हो जाती है. So when my time, मेरी पूरी half of the body was burn and I was allowed to wear only 2 size bigger and pure malmal clothes. So we designed a stylish straight dresses for the cancer patient for that, and also a healthy snacks, also a bandana, wigs which are cheaper price and still a better quality. Then we are coming up with the several other items. So pan India vendors are joining our hands, and you know, we are there to give them a wide range of products which are useful, which are zero chemical, which give them hope and healing. So and we Wow. are launching the product on 1st of October. 1st October. Okay, I'll wait for it. So not for just for the cancer patient, but for the winners as well. Because you know, after recovery, Survivors and winners, yeah. survivors follow some particular pattern of healthy lifestyle and doing everything, which is helpful for their survival. So that's why it's a range for everyone, not just for the undergoing cancer patient, but for the winners as well. Wonderful. I like this term, winners and not survivors. Somebody who's going through a crisis maybe, जिसको कोई प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, जिसकी कितनी बार ऐसा होता है, छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी प्रॉब्लम, लगता है व्हाई मी, अब क्या होगा, कैसे होगा. ऐसे टाइम पे कोई इंसान गुजर रहा है तो उसको आप क्या एडवाइस दोगे या क्या आप कहोगे कि so that that person is motivated and can sail through easily through the storm? See, Mera, first thing we all have to understand, if we are facing some crisis, if we are facing some sort of situation in life, that situation is there, and you are contributing in that situation to increase your stress level, increase Right. your issues and problem. So better you not focus. They should not focus on problem. It's good if they focus at that time also on the solution. So don't give up before try it. You know, पीपल नॉर्मली गिव अप के नहीं यार ये ऐसा हो गया मेरी लाइफ में, अब मैं भी एक्सेप्ट कर सकती थी अपनी लाइफ विद कैंसर, नहीं अब तो मैंने मरना ही है, नो, बट आई गिव अ ट्राई कि लेट्स सी. एक लड़की जो इंजेक्शन देख के बेहोश हो जाती थी, वो लड़की अकेले अपना पूरा कैंसर का ट्रीटमेंट करा के आ गई. सो दिस इज व्हाट माई ट्राई टूवर्ड्स माई लाइफ, राइट? तो अगर मेरी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होती है, मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ बिकॉज आई हैव बिन थ्रू दैट सिचुएशन. सो जब मेरी लाइफ में कुछ भी इस तरीके के इश्यूज होते हैं ना, I accept that situation and I don't think about society. First of all, we have to block our air what society will think. One should have to understand problem भी आपकी है, solution भी आप ही के पास है. So focus on solution, don't focus on problem. Oh, wonderful. So don't add to the problem by stressing over it. Solution Exactly. निकालो, stress तो already है ही.
उसको है ये ignore करो. स्ट्रेस लाइफ में And यार? don't listen to society. नॉट एट ऑल. And do you believe in God? This is a question that I want to ask you. I know I the answer, but I want people to know, hear from you. So I believe in God definitely because I witnessed lots of miracle around me. I'll give you a simple example, Meda. There is one girl from Mangalore. She approached me for her further study, and she actually completed her education, and she was from one of the slum in Mangalore. शी सेड आंचल मैम मुझे आपका पता चला और मुझे ना पढ़ाई करनी है और मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है. आई डोंट नो हाउ टू परस्यू माय फर्दर स्टडीज. उस लकीली आई हैव कपल ऑफ कनेक्शन देयर एंड मैंने उनको बोला आकांक्षा ट्रस्ट करके है एक ग्रुप. आई आस्क्ड देम कि आप प्लीज़ इस लड़की का पता लगा सकते हो एंड उन्होंने उनके कॉलेज में जाके उनके टीचर्स के साथ में क्रॉस चेक किया. देयर वी गॉट टू नो कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा ब्राइट है एंड इफ़ शी गेट अ चांस शी कैन डू वंडर. ट्रस्ट मी उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे और मैंने उस बच्चे को फ़ोन पे बोला कि ठीक है बेटा मैं आपकी स्टडी स्पॉन्सर कर रही हूँ बिकॉज जो मैं नहीं कर पाई मुझे खुशी मिलती है कि मेरी वजह से कोई आगे वो चीज़ कर पा रहा है. राइट. तो मैंने उसको बोला एंड मैंने 25,000 उसके अकाउंट में ट्रांसफर करा दिए विद इन अ वीक टाइम. और उससे पहले तो मैं उनको बोल चुकी थी कि आई स्पॉन्सर योर 2 years PhD. ट्रस्ट मी आफ्टर maybe 10 or 12 days somebody called me that Achal I want to donate 50,000 exact amount. I help her. So I believe there is a God, there is an energy, and for God you don't need to worship in temple or go to masjid or gurdwara. Just start enjoying small things around you and make sure if someone is suffering near you, your guard, your household, whatever is suffering and they need something, start helping them. Small contribution of yours in someone's life is my prayer actually. तो मेरा Wow. भगवान बिलीव वही है. For my prayer is helping someone else, and in reward I get lots of love and all the achievement is God giving me back. Wonderful. So the kindness that you show to people comes back to you many folds, is what you're saying. And to serve God, serve humanity. Yes. Wonderful. It's a terrific story, Achal. Yours is a story of positivity and the fighting spirit and the spirit of life. And there's so much to learn from you. Thank you so much for your time. But before we conclude this, I want to ask you if somebody wants to help people through Meals of Happiness, how they can do it. If I want to feed people, what I can do, and where I can donate or contact you maybe or your organization. So, Medha, we have a page on Facebook by the name of Meals of Happiness Charitable Trust. Also, we have a page on Twitter and we have a page on Instagram. So, they can ping us there, or we have a payment gateway there. They can choose whatever help they want to give us. They can help us in kinds. They can help us as a volunteer their time, give us their time to volunteer for a cause, or they can help us monetary. And yes, one request, when you celebrate your special days, and we spend actually lakhs and thousands of rupees in our celebration for one day or short time duration, I would say. If everyone decide to give small part of that contribution to society and sponsor meals or help people to get their education, would be a great initiative. So yes, people can come forward to celebrate their special days, and they can sponsor not even 100,000 meals. They can even approach us to sponsor one meal for one person. So these are some of the ways that we can help society and add to our good karma, as well as spread happiness, So, and Rachel is giving us that opportunity to help society. And I'm sure a lot of us are going to now donate to Meals of Happiness. And I hope it goes places and all of us get a chance to make this world a better place. All because of you, Achal. Thank you so much. So friends, that was Achal Sharma. And this is Truth Be Told. Subscribe to our channel and also check out os.me, where we run this amazing program called os.me Karma Program. You make money for sharing experiences and supporting others.